Hello everyone, welcome to the new lecture of Building Construction and Materials. In previous lecture we have started the new unit, that is unit number 5, and we have completed the topic from unit number 5, that is stairs. Okay, we have seen the all the content of stairs. Okay, types of stairs, their functions. Okay, everything we have seen in past two lectures. If you remember, last two lectures were based on the topic from stairs only. So unit number 5 half portion is completed because we have completed the topic from stairs. So now the next thing in unit number 5, that is doors and window. As I told you before that the unit number 5 is consist of two topics, that is stairs and doors and window. So stairs is completed. So now let's start with the doors and window. Okay, doors and window is also a very simple topic, very similar to like stairs, which was also very simple. So doors and window is also very simple. We will see purpose, material, and of construction and types. The most important thing is the types of doors and window. Okay, we will see the functions of doors and window, the material used in doors and window. Okay, so let's start doors and window topic. It is also very simple. Let's see. So let's see doors and window. Okay, first of all we will see door. Okay, what is a door? You have seen these things very much in your houses or everywhere. You will see doors. Okay, you have seen doors everywhere, but the types of doors you will not you don't know the types of doors. Okay, we will see what are the different types of doors. Okay, it's a very simple thing. You have seen this in the we already see this in our day to day life. डोर ओके, हम इसे हमेशा देखते हैं अपनी रोजाना की जो लाइफ है. डोर देखते हैं हम, विंडो भी देखते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि उसका टाइप क्या है ना. जनरल डोर हमको दिखता है, हम वही देखते हैं. चलिए देखते हैं कि डोर होता क्या है. लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली डोर इज. See, we can define door like as you can see in your front of your screen. We can define door may be defined as an openable barrier secured in a wall opening. It is provided to give an access to inside of a room. Simple. डोर क्या है, डोर को किस तरह डिफाइन किया गया है, देखिए. इट्स एन ओपनेबल बैरियर, ऐसा बैरियर जो कि ओपन हो सकता है, जो कि ओपन होता है. बैरियर है लेकिन ओपन होता है. सिक्योर्ड इन अ वॉल, वॉल में जिसे हम वॉल ओपनिंग में जिसे हम सिक्योर्ड करते हैं, वॉल के अंदर ही रखते हैं ना हम डोर को. वॉल के अंदर एक ओपनिंग छोड़ देते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, फिर उस ओपनिंग में हम क्या करते हैं, डोर को वहां पे फिट करते हैं. लास्ट फिर क्या लिखा है, इट इज प्रोवाइडेड टू गिव एन एक्सेस टू इनसाइड ऑफ अ रूम. ठीक है ना, ये एक एक्सेस देता है रूम के अंदर जाने को या रूम से बाहर आने के लिए, इनसाइड जाने के लिए भी या आउटसाइड आने के लिए भी. ठीक है ना, सिर्फ इनसाइड जाने के लिए नहीं, even if you want to come from inside to outside you will use door. So this is the simple and very simple and easy definition of door. Okay, okay, तो इस तरीके से सिंपल सिंपल डेफिनेशन है और हमें पता ही है डोर क्या है. बस उसे एक हमने डिफाइन किया है, किस तरह उसको हम बोल सकते हैं. उसके बाद देखिए क्या लिखा है, फंक्शंस. डोर्स के फंक्शंस क्या हो सकते हैं. देखिए सबसे पहला फंक्शन डोर का क्या होता है, दे एडमिट वेंटिलेशन एंड लाइट. डोर से क्या है, वेंटिलेशन भी आता है और लाइट भी आता है. इसका मेन फंक्शन तो एक्सेस देना है रूम के अंदर या रूम से बाहर आने के लिए, वो तो है ही. इसके अलावा जो इसके फंक्शंस है, दैट इज दे एडमिट वेंटिलेशन एंड लाइट. सेकेंड है देखिए, control the physical atmosphere within a space by enclosing it, excluding air draft so that interior may be more effectively heated and cooled. देखिए अगर हम डोर को क्लोज कर देंगे तो बाहर का जो हीट है या बाकी नॉइस वगैरह है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती है डोर से. ठीक है ना. थर्ड पॉइंट भी उसी के बारे में देखिए, दे एक्ट एज अ बैरियर टू नॉइस. जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो नॉइस आना भी बाहर की बंद हो जाती है. When we close the door, the noise from outside cannot be traveled inside the room because of the closing of door. Okay. Next is the fourth point, that is used to screen areas of building for aesthetic purposes, keeping formal and utility areas separate. देखिए जब बिल्डिंग में आप देखते हैं, आपके घरों में ही आप देखते हो,
when you want to separate areas, we will use walls and doors, है ना। वॉल का यूज करेंगे, पार्टीशन वॉल का, और पार्टीशन वॉल में क्या रहेगी, क्या रहेगा, डोर रहेगा, है ना। तो एरिया को सेपरेट करने के लिए, जैसे किचन को अलग करना है, डाइनिंग अलग करना है, बेडरूम अलग करना है, हॉल अलग करना है, तो इसको हम वॉल से ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ डोर भी उसमें फिट किया जाएगा। सिंपल इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये सिंपल जनरल इन्फॉर्मेशन थी डोर के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट आपको पता ही है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट लोकेशन ऑफ डोर। हम कभी इस पे ध्यान नहीं देते, है ना। कभी आप सोचते नहीं होंगे कि डोर की लोकेशन कहाँ होना चाहिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू और प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सबसे पहली चीज तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ बिल्डिंग दैट द नंबर ऑफ डोर शुड बी मिनिमम। देखिए, डोर्स जो है वो कम से कम होना चाहिए, बिकॉज इट अफेक्ट्स द प्राइवेसी। प्राइवेसी बिल्डिंग की अफेक्ट होती है डोर से, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। जितने ज़्यादा डोर हम प्रोवाइड करेंगे, बिल्डिंग की प्राइवेसी पे फर्क पड़ेगा। दैट्स वाई द नंबर ऑफ डोर शुड बी केप्ट एज मिनिमम। जितना हम कम रख सके उतना कम, एक वॉल में हो सके तो एक ही डोर है, जितने हम डोर कम देंगे उतना बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट इज इट शुड मीट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो भी हम जगह पे हम डोर को प्लेस कर रहे हैं, उसका फंक्शन और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसे प्लेस करना है, ठीक है। थर्ड इज इट शुड प्रिफरेबली लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ रूम नियरली 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्नर। डोर को हमेशा देखिए कॉर्नर पे ही लोकेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक हमारा रूम हो गया, ठीक है। ये एक हमारा, अज्यूम कीजिए कि ये जो अभी हमने ड्रॉ की, ये हमारा एक रूम है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ पर अगर एक डोर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये जैसे कि मैं आपको दिख रहा है, ये कॉर्नर पे अगर हम एक डोर को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि हमने एक कॉर्नर पर ड्रॉ किए रूम को, ठीक है। ये देखिए, ये जो सपोज ये डोर है, ठीक है, ये एक डोर हमने प्रोवाइड की कॉर्नर पे। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप कॉर्नर पे रूम को डोर को प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसकी जो एक्सेस, इसकी जो प्राइवेसी है, यहाँ से अगर कोई रूम के अंदर झांकेगा तो उसे सिर्फ इतना पोर्शन दिखेगा, ठीक है ना। इस साइड का पोर्शन उसे नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से रूम के अंदर देखेंगे इस डोर से, वी कैन सी ओनली दिस फ्रंट एरिया, वी विल नॉट सी दिस एरिया फ्रॉम द साइड। तो ये जो साइड का पोर्शन है, ठीक है ना, इसकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है हमेशा अगर डोर इस कॉर्नर पे रहेगा। बट सपोज अगर डोर को हम सेंटर पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने सेंटर पे प्रोवाइड किए डोर को, ये सपोज डोर है, जब देखने वाला, व्हेन अ पर्सन कैन if he sees from this door, he can see everything, है ना। वो ऑलमोस्ट सारी पोर्शन को देख सकता है, इस अगर हम डोर को इस तरीके से सेंटर में प्रोवाइड करेंगे तो। इसीलिए बिल्डिंग की प्राइवेसी या रूम की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए डोर को हमेशा कॉर्नर में ही प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा पोर्शन उसका बाहर वाले को ना दिखे। इसका सीधा इफेक्ट आता है प्राइवेसी पे। ये सिंपल याद रखिए, क्यों हम कॉर्नर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन होती है ज़्यादातर अच्छे से। इसके अलावा डोर कॉर्नर में प्रोवाइड करना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी ओपनिंग छोड़ना ईजी है एज कम्पेयर टू द सेंटर, ठीक है। इसलिए इट शुड बी प्रिफरेबली लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ रूम नियरली 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्नर। यानी 20 सेंटीमीटर हम यहाँ से कॉर्नर के से थोड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि हमें फ्रेम वगैरह भी फिट करना है। थोड़ा सा 20 सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़कर हम यहाँ पे कॉर्नर पर ही रूम को, डोर को फिक्स करेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इफ इन अ रूम मोर देन 2 डोर्स आर देयर, दे शैल बी लोकेटेड फेसिंग ईच अदर। देखिए, इसका भी सिंपल है, अगर एक रूम में 2 डोर है, यानी कि 2 रास्ते हैं, तो ये अगर डोर है तो इसके जस्ट अपोजिट एक और डोर होना चाहिए, सेम प्राइवेसी इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर अगर हमने एक यहाँ पे प्रोवाइड किया और एक सेंटर पे प्रोवाइड किया, यानी कि रूम की प्राइवेसी कुछ भी नहीं रहेगी। इसलिए इफ देयर आर 2 डोर्स देन दे शैल बी लोकेटेड फेसिंग ईच अदर, यानी कि अगर वहाँ पे 2 डोर है तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, फेसिंग ईच अदर। इससे बिल्डिंग की प्राइवेसी या रूम की प्राइवेसी मेंटेन होती है। डोर्स और प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा
एक बोल सकते हो आप रिलेशनशिप है। हम डोर को हमेशा प्राइवेसी के को ध्यान में रखकर, बिल्डिंग की प्राइवेसी को या रूम की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर फिक्स करेंगे। ठीक है, आई होप आपको लोकेशन भी समझा है। तो चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं अब इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं। देखिए कोई भी डोर के दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है डोर का फ्रेम। ठीक है, जो आप देख रहे हो ये डोर का फ्रेम है, ये पूरा एक फ्रेम है। इमेजिन कीजिए डोर को, और आप देखते होंगे कि एक फ्रेम के अंदर डोर को फिट किया जाता है। डोर के दो पार्ट होते हैं जैसा अभी बताया, एक डोर का फ्रेम होता है और डोर का शटर होता है। हम हमेशा डोर के शटर को ही डोर बोलते हैं, है ना, जनरली ऐसा होता है। लेकिन डोर पूरा वो पार्ट है। ठीक है, हम हमेशा समझते हैं जो शटर है वही डोर है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, डोर के दो कंपोनेंट है, एक डोर का फ्रेम जो कि आपको अभी दिख रहा है, और एक डोर का शटर जो ओपन होता है या क्लोज होता है। शटर ओपन या क्लोज होता है। डोर का जो फ्रेम है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। द डोर फ्रेम इज फिक्स्ड ऑन इट्स लोकेशन बट द डोर शटर इज एन ओपनेबल बैरियर। यानी कि डोर का जो शटर है वो ओपन या क्लोज होगा, जो यहाँ पे आएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, द थिंग विच यू आर सीइंग इन योर स्क्रीन इज कॉल्ड एज डोर फ्रेम। और डोर फ्रेम के कंपोनेंट भी आप देख लीजिए क्या क्या है। इस तरीके से देखिए, सबसे पहला जो हम टॉप में देखते हैं हमेशा, एक एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हेड, डोर फ्रेम का हेड। इसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये जो वर्टिकल मेंबर होता है डोर फ्रेम का, इसको बोलते हैं जैम या फिर पोस्ट। ठीक है, जैम या फिर पोस्ट। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक रिबेट होता है। रिबेट मतलब ये ग्रूव है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, डबल लाइन, ये होता है रिबेट या ग्रूव। इसके अंदर डोर का जो शटर है उसको फिक्स करते हैं, है ना। ये जो रिबेट है इसको होल होता है डोर फ्रेम के अंदर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डोर शटर को फिक्स करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखिए यहाँ पर फिर ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन जो मैंने बोला है जो बचा है, दैट इज कॉल्ड एज हॉर्न। ये वॉल के अंदर फिक्स किया जाता है। ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है वॉल में फिक्स होगा, और ये पूरा पोर्शन को हेड बोलते हैं, और ये जो एक्सटेंडेड है दैट इज कॉल्ड एज हॉर्न। जो वर्टिकल पोर्शन है उसे जैम या पोस्ट बोलते हैं। फिर ये वर्टिकल पोर्शन के अंदर इस तरीके से एक रिबेट या ग्रूव होता है जिसके अंदर डोर शटर फिक्स हो जाता है। इसके अलावा एक होल्ड फास्ट होता है, होल्ड फास्ट। ये इस तरीके से स्टील के होते हैं, कास्ट आयरन के भी होते हैं, इस तरीके से शेप के एंगल्स होते हैं। ये एंगल्स वॉल के अंदर फिक्स करते हैं, डोर फ्रेम इससे अटैच रहता है, वॉल में फिक्स रहता है। ठीक है, दिस होल्ड फास्ट आर यूज टू अटैच द डोर फ्रेम एंड वॉल। तो इसको वॉल में फिक्स किया जाता है। ठीक है, होल्ड फास्ट। FL मतलब होता है फिक्स लेवल। ठीक है, तो ये होता है डोर फ्रेम के पूरे कंपोनेंट, समझ गए होंगे आप, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज डोर शटर। जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये डोर फ्रेम है, अब इसके अंदर क्या आता है, डोर शटर, जो कि ओपन या क्लोज होता है ना, ये होता है डोर का शटर। ठीक है, इसमें देखिए ये जो आपको बीच बीच में जो बॉक्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं पैनल्स, है ना। हमने डोर में हमेशा देखिए होता है पैनल्स होता है ये। अब ये देखिए पैनल्स हो गया। अब जो वर्टिकल, ये जो लाइन दिख रही है, वर्टिकल जो दिख रहा है इस तरीके से पोर्शन, ये वर्टिकल पोर्शन जो है, ये वर्टिकल पोर्शन, इसे बोला जाता है स्टाइल। जो वर्टिकल पोर्शन है उसे बोला जाता है वर्टिकल पोस्ट या वर्टिकल पोर्शन को बोला जाता है स्टाइल। सबसे ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसे बोला जाता है टॉप रेल। याद रखेंगे जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसे हमेशा हम क्या बोलेंगे, रेल्स। तो ये हो गया टॉप रेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आता है फ्रीज रेल, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट रेल्स। ठीक है ना, और सबसे नीचे आता है बॉटम रेल। बॉटम और टॉप तो आसानी से समझ जाएगा कि सबसे ऊपर वाला टॉप रेल, सबसे नीचे वाला बॉटम रेल। अब नीचे के तीन जो है उसको कैसा डिफाइन करेंगे, देखो जो टॉप रेल के जस्ट नीचे होगा उसे बोलेंगे हम फ्रीज रेल। ठीक है, टॉप रेल के नीचे जो होगा उसे बोलेंगे फ्रीज रेल, और बीच में बॉटम और फ्रीज रेल के बीच में जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स या रेल्स होंगे उसे बोलेंगे हम इंटरमीडिएट रेल्स। ठीक है, ये हो गया डोर शटर के बारे में। याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं रेल्स, वर्टिकल होता है स्टाइल, और बीच में होते हैं पैनल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था डोर के थोड़े से कंपोनेंट। इसके अलावा भी है इसमें, जैसे कि ये कंप्लीट फ्रेम और शटर को अटैच करके अगर हम देखेंगे, देखिए अभी इसमें ये डोर फ्रेम आ गया, साथ ही साथ में पैनल भी अटैच है। तो ये बहुत अच्छे से आप इसको फिर से देख सकते हो। देखो ये डोर फ्रेम है, ठीक है ना, ये केसिंग है पूरे डोर फ्रेम की, बाकी सारे पार्ट अभी हमने देखे। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्या होता है, ये हेड होता है। ठीक है ना, ये हेड हो गया।
ठीक है ना। और ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, जैम बोल सकते हैं या पोज बोल सकते हैं। देखिए फिर से दिखाता हूँ आपको, देखो वर्टिकल पोर्शन को जैम या पोज बोलते हैं हम। ठीक है, ये पूरी एक अटैचमेंट है। अब देखिए इसके साथ में ये जो शटर अटैच है, देखो यहाँ पे ये हिंज अरेंजमेंट है ना, देखो यहाँ पे हम जनरली हमारे घर में हिंज होता है मैक्सिमम जो हम देखते हैं ना, इसे बोलते हैं हिंज के साथ जो अटैच होता है, हिंज सपोर्ट। ठीक है ना, एक हिंज की तरह अटैच है डोर फ्रेम से उसका शटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये टॉप रेल। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे लॉक रेल। इसको लॉक रेल इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे लॉकिंग जो अरेंजमेंट है वो है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज लॉक रेल। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इसमें नहीं था वो है इसमें, वो ये है कि हमने देखे थे कि इस तरीके से, पहले इसको देखो, ये जो डिवाइड हो रहा है पूरा डोर, ये वर्टिकली नहीं हो रहा है ना, ये हो रहा है हॉरिजॉन्टली। ये पैनल में एक हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, फिर हॉरिजॉन्टली। अब इस केस में देखो हॉरिजॉन्टली तो डिवाइड हो रहा ही है, बट उसके साथ साथ एक बीच में भी इसका एक देखो डिवीजन है पैनल का। ये 4 पैनल है, हॉरिजॉन्टली तो डिवाइड हुए ही है, इसलिए हम इसको रेल बोलते हैं। लेकिन अगर पैनल वर्टिकली डिवाइड होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर पैनल जो है वो वर्टिकली डिवीजन होगा, तो जो वर्टिकल जो पोर्शन उसको डिवाइड कर रहा है उसे बोलेंगे हम मुलियन। ठीक है, उसे बोलेंगे हम मुलियन, याद रखेंगे। पूछता है ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा, काफ़ी काफ़ी जगह से पूछा जाता है कि ये जो मूलियन क्या होता है, जब वर्टिकली पैनल को हम डिवाइड करेंगे उसे हम बोलेंगे मूलियन। ठीक है, बाकी टॉप रेल पैनल तो आपको पता ही है, बॉटम रेल, देखिए जो इसका बॉटम होता है इसको थ्रेशोल्ड ही बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली पैनल को डिवाइड करेंगे तो उसे बोलेंगे रेल, लेकिन अगर वर्टिकली करेंगे तो उसे बोलेंगे मूलियन। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डोर के साइजेस। देखिए जो कॉमन डोर का साइज जनरली देखिए यहाँ पे जो विड्थ है 0.4 टू 0.6 होती है हाइट की। ठीक है ना, हाइट देखिए विड्थ का प्लस 1.2 फीट। अब इतना समझने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल नीचे देखो जनरल साइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। रेसिडेंशियल बिल्डिंग को मानते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा जो घर होते हैं उसे हम बोलते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग। सबसे पहले जो मेन एक्सटर्नल डोर होते हैं, है ना, जो बाहर लगे होते हैं एक्सटर्नल जो बड़े डोर होते हैं, मेन डोर्स। ठीक है ना, उसका साइज देखिए 1:1:2। ठीक है ना, 1:2, यानी कि उसकी जो, फिर से मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ कि इस तरीके से डोर है ना। तो ये 1 मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल 1 मीटर, और ये 2 मीटर। तो जनरल जो हाइट है ना, हमेशा याद रखो जो हाइट होती है ना वो जनरली 2 मीटर होती है, या 2.1 मीटर मैक्सिमम, 2 to 2.1 मीटर। ये 2 मीटर डोर की हाइट हमेशा होती है, 2 या 2.1 होती है जनरली। ठीक है ना, 2 मीटर या 2.1 मीटर इसकी हाइट होती है, और विड्थ 1 मीटर के आसपास होती है। एक्सटर्नल डोर 1 या 1:2 होता है, या 1.1:2 होता है, 1.1:2 होता है। ठीक है, सिमिलरली इंटरनल डोर, या जो अब घरों के अंदर जो डोर होते हैं हमारे, 0.9 उसकी विड्थ होती है। देखिए मेन डोर की विड्थ 1 मीटर है, लेकिन इंटरनल डोर्स की जो विड्थ है वो हमेशा 0.9 के आसपास होती है, 0.9 to 1। ठीक है ना, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों में, मेन डोर और इसमें। जो बड़ा वाला गेट होता है घर पे उसका तो साइज हम जनरली अपने हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है ना, गैरेज वगैरह का जो गैरेज हो गया, गैरेज का डोर हो गया, या उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम मेन डोर्स की बात करें जो घरों के मेन हॉल वगैरह में क्या लगा होता है, एक्सटर्नल डोर। फिर इंटरनल डोर क्या है, रूम टू रूम कनेक्ट करते हैं। तो ये जो इंटरनल डोर है 0.9:2 या 1:2 होता है। ठीक है, अब जो बाथरूम या डब्ल्यू सी मतलब वाटर क्लोजेट, तो बाथरूम या डब्ल्यू सी, ठीक है ना, इसका जो डोर का साइज होता है वो होता है 0.7, याद रखेंगे 0.7:2 या फिर 0.8:2। अब एक चीज़ आप इसमें कॉमन आप देख रहे होंगे कि जो हाइट है वो 2 मीटर ही होती है, सिर्फ क्या चेंज हो रही है इसमें, विड्थ चेंज हो रही है मैक्सिमम। हाइट फिक्स है, हाइट 2 मीटर ही होती है, क्योंकि जनरली हमारी हाइट जो है वो 2 मीटर से ज़्यादा बहुत कम लोगों की होगी, है ना। तो जनरली हाइट जो है वो 2 मीटर ही होगी, सिर्फ विड्थ चेंज होगी। तो बाथरूम डब्ल्यूसी में कम विड्थ रखते हैं, 0.7 या 0.8। इसके अलावा अगर गैरेज वगैरह है तो उसमें जो 2.25:2.25 का साइज रहता है, बड़े डोर होते हैं, 2.4 की विड्थ या 2.25 का, है ना, ये गैरेजेस वगैरह के लिए। तो ये हो गया रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। याद रखेंगे डोर का साइज क्या होता है, इंटरनल के 0.9:2 और एक्सटर्नल के लिए 1:2, या डब्ल्यू सी बात के लिए 0.7:2। ठीक है, चल
नेक्स्ट देखिए पब्लिक बिल्डिंग। अब पब्लिक बिल्डिंग जो होती है ना, जो बैंक्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, या जनरल एनएमसी मतलब एनएमसी ऑफिसेज वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है साइज जनरली 1.2 की विड्थ होती है। 1.2 की विड्थ भी काफ़ी होती है। 1.2:2, 1.2:2.1 या 1.2:2.25। ठीक है, थोड़ी बहुत हाइट चेंज भी होती है इसमें। ठीक है, अलग अलग साइजेस हम प्रीफर कर सकते हैं पब्लिक बिल्डिंग के लिए। एक स्टैंडर्ड साइजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, डोर का साइज समझ गया। चलिए आगे देखते हैं डेजिग्नेशन ऑफ डोर। देखिए कई दफ़ा क्या होता है, डेजिग्नेशन के हिसाब से लिखा होता है, हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे कि द साइज ऑफ एन ओपनिंग इज इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ मॉड्यूल्स वेयर ईच मॉड्यूल इज ऑफ 100 mm। ठीक है ना, 100 mm का एक मॉड्यूल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल 10DS20। ठीक है ना, इसका मतलब देखिए यहाँ पर 10DS का मतलब क्या होता है। देखिए साइज क्या होगा इसका, 100 mm का मॉड्यूल है, इसलिए क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, 10 का मतलब 1000 इंटू 2000 mm, क्योंकि 100 mm का मॉड्यूल है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्या हो जाएगा 1000 इंटू 2000 mm। ठीक है ना, हमने अभी जो पढ़े वो मीटर में पढ़े, ये जो हमने साइज पढ़े सब मीटर्स में थे। यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 1000, 10 का मतलब क्या होगा 100 mm है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 mm एंड 2000 mm। DS का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे D का मतलब होता है डोर ओपनिंग, S का मतलब होता है सिंगल शटर। ठीक है ना, S है तो उसका मतलब है एक ही शटर है। अब सिंगल शटर क्या होता है, ये देखो यहाँ पे, ये एक सिंगल शटर है। ठीक है, सिंगल शटर है। ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद 10DT20, इसका मतलब भी क्या, 10 का मतलब 1000 है, 20 का मतलब 2000 है। D का मतलब डोर है, लेकिन T का मतलब क्या होगा यहाँ पे, T का मतलब होता है डबल शटर। इसका मतलब सिंगल शटर, T का मतलब डबल शटर। अब डबल शटर डोर कैसा दिखता है दिखा देता हूँ आपको, इमेज होगी एक हाथ, एक सेकेंड वेट करिए। ये देखिए ये एक डबल शटर है, ये दो शटर है ना इसमें। ठीक है, ये डबल शटर है, दो शटर है। और सिंगल शटर हमने अभी देखी एक इमेज, ये देखिए ये हो गया हमारा सिंगल शटर। ठीक है, ये भी एक सिंगल शटर का एग्जांपल है। तो इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, वो होता है डोर्स के फ्रेम। ठीक है ना, डोर फ्रेम क्या होता है। ठीक है ना, डोर फ्रेम आपने देखे, एक जो फ्रेम है जिसके अंदर हम शटर को फिक्स करते हैं। अब मटेरियल क्या क्या होता है डोर फ्रेम का, देखो हमने जनरली डोर फ्रेम तो टिम्बर तो हमने मैक्सिमम देखे, टिम्बर मटेरियल होता है। स्टील भी देखे हमने, एल्यूमिनियम भी होता है, कंक्रीट के भी होते हैं फ्रेम, और स्टोन के भी होते हैं। इतने सारे मटेरियल के डोर फ्रेम होते हैं। ठीक है, फ्रेम मतलब अभी फिर से याद दिला दूं, ये है डोर फ्रेम। ठीक है ना, ये डोर फ्रेम, तो ये टिम्बर का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, कंक्रीट स्टोन का भी हो सकता है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, अलग अलग इसके मटेरियल में आते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डोर, इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ डोर क्या होता है। ठीक है ना, बहुत अलग अलग टाइप के, बहुत वेराइटीज है इसमें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो हमने यहाँ पे लिखे। सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप्स होते हैं वो लिखे। सबसे पहले वर्किंग ऑपरेशन के हिसाब से देखिए, सबसे पहला आता है हिंज डोर। ठीक है ना, वर्किंग ऑपरेशन है, जो कनेक्शन है डोर फ्रेम और इसका आपके शटर का। तो सबसे पहला आता है हिंज डोर। हिंज में भी काफ़ी सारे टाइप है। हिंज में बैटन आता है, फ्रेम एंड पैनल, ग्लेज्ड आता है, फ्लश्ड आता है, लोवर्ड आता है, वायर गेज्ड आता है। ये बहुत ज़्यादा है, हम इसको शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में आपको बस समझना है कि वो कौन से टाइप का डोर है। तो ये हिंज में इतने सारे टाइप है। इसके अलावा रिवॉल्विंग है, स्लाइडिंग डोर होता है, स्विंगिंग डोर होता है, कोलैप्सिबल डोर होता है, रोलिंग शटर होता है। तो इतने सारे टाइप्स के होते हैं। मेन जो है वो ये है, हिंज डोर्स, रिवॉल्विंग, स्लाइडिंग, स्विंगिंग, कोलैप्सिबल और रोलिंग शटर, ये मेन टाइप्स है। ठीक है ना, 6 जो है ना 6 टाइप के मेन है। फिर हिंज में जो है, हिंज में काफ़ी सारे टाइप के आते हैं। हिंज में भी 6 टाइप के आते हैं। ठीक है, बैटन, फ्रेम, ग्लेज, फ्लश, लोवर्ड और वायर गेज। तो हम इनको भी देखेंगे सबको। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हिंज डोर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हिंज डोर क्या होता है। हिंज डोर, सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। सबसे हिंज का मतलब तो समझ जाइए सबसे पहले क्या होता है। ये देखिए ये हिंज कनेक्शन है ना, इस तरीके से हिंज कनेक्शन होता है। हमने देखे, आपने ये देखे होंगे हिंज कनेक्शन होता है सबसे ज़्यादा। देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, इस तरीके से हिंज कनेक्शन होता है डोर शटर और डोर फ्रेम के बीच में, है ना।
इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। एक पिवोट होता है जिसपे जो डोर है वो क्लोज हो सकता है या ओपन हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है हिंज डोर, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए इसमें ये होता है हिंज कनेक्शन। सबसे पहले कनेक्शन समझ लो। अब उसके बाद देखिए हिंज डोर क्या होता है। मोस्ट डोर्स आर हिंज अलोंग वन साइड टू अलाउ द डोर टू पाइवोट अवे फ्रॉम द डोर वे इन वन डायरेक्शन बट नॉट इन द अदर डायरेक्शन। हमेशा आप देखोगे कि जो डोर का जो एक हिंज कनेक्शन है वो एक पिवोट की तरह डोर पे क्या करता है, डोर क्या होता है उसके ऊपर एक मूव करता है पिवोट पे, ठीक है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज यूजुअली वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस में रोटेट करता है ना, डोर का क्लोज होता है ओपन होता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन डोर टाइप इट इज सिंपल एंड रिजिड। सबसे ज्यादा मैंने बोला था सबसे ज्यादा यूज होता है हिंज डोर, है ना, हमारे घरों में भी हिंज यूज होता है। पैनल क्या होता है, स्विंग होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है ऑन हिंजेस। जो हिंज कनेक्शन है उसके ऊपर क्या होता है, जो पैनल्स है वो स्विंग होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। हिंज डोर्स आर रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग। दे आर नॉट एक्सपेंसिव एंड हैव एक्सीलेंट इंसुलेटिंग एबिलिटी। सस्ता है, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है इसका। हाउएवर दे टेक अप प्रीशियस रूम स्पेस टू स्विंग इन। लेकिन जब हम उसे खोलते हैं तो रूम की स्पेस को वो कवर करता है ना, थोड़ा सा रूम की स्पेस को कवर करता है। जब भी हम इस जैसे कि ये इमेज में देख रहे हो ये एक हिंज कनेक्शन है, जैसे हमने इसको ओपन किया तो ये रूम का इतना एरिया इसने कवर कर लिया, तो इसलिए बस ये रूम का एरिया कवर करता है। अदरवाइज एक्सपेंसिव नहीं है और काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस भी इसका कम है और ज़्यादा भी यूज़ होता है, ठीक है। ये होता है हिंज डोर, ठीक है। हिंज डोर समझिए। अब इसके टाइप्स देखेंगे हम। हिंज डोर में जो सबसे पहला देखिए हमने देखे थे वो है बैटन टाइप। देखो बैटन का मीनिंग क्या होता है, ये इस तरीके से अगर सबसे पहले देख लो। द डोर कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल बोर्ड्स। ये जो वर्टिकल बोर्ड्स है ना, देखो ये बहुत सारे इसको हमने क्या किया, नेल से या कीले से इसको अटैच किया आपस में। तो ये जो वर्टिकल पोस्ट है, वर्टिकल बोर्ड है, इसको बोलते हैं बैटन, ठीक है ना, बैटन। और ये हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं हम लेजेस। बैटन्स क्या होता है, देखो वर्टिकल बोर्ड क्या होता है, बैटन्स एंड 3 और 4 हॉरिजॉन्टल लेजेस। ये लकड़ी के जो वर्टिकल पोर्शन होते हैं इसको बोलते हैं बैटन्स। बहुत सारे बैटन से मिलकर एक पैनल बनता है। फिर ये जो बैटन्स है इसको हॉरिजॉन्टली अटैच करते हैं लेजेस से। तो ये लेजेस क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, ठीक है। द वर्टिकल बोर्ड्स आर टंग एंड ग्रूव टू स्टॉप ड्राफ्ट एंड एजेस चैम्फर्ड टू रिलीव द प्लेन अपीयरेंस। इसको देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपस में ये जो बैटन्स अटैच कर लेते हैं, ग्रूव बनाते हैं अंदर। उसके बाद इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली हम क्या करते हैं, लेजेस को प्लेस करते हैं। जनरल साइज बैटन का 100 बाय 150 वाइड होता है, 20 टू 30 mm थिक होता है। ये जो बैटन्स है वर्टिकल पोर्शन, ये बैटन्स है, एक बैटन, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरीके से 5 बैटन्स है इसमें। साइज क्या है इसका, 100 टू 150 mm वाइड। जो विड्थ है 100 टू 150 mm है, थिकनेस 20 टू 30 mm। सिमिलरली जो लेजेस है वो क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसका भी जो विड्थ है देखिए क्या है, 100 टू 200 mm वाइड और 20 टू 30 mm थिक, ठीक है। उसके बाद देखिए द डोर इज हंग इन टू द फ्रेम बाय टी हिंजेस। इस तरीके से जो टी हिंजेस से हम क्या करते हैं, अरेंज हिंज के साथ में फ्रेम में फिक्स करते हैं इसको, डोर को, ठीक है ना। द डोर इज कॉमनली यूज फॉर नैरो ओपनिंग फॉर इंटरनल यूज वेयर इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू हार्ड यूज और वेयर इकोनॉमी ऑफ इज ऑफ मेन कंसिडरेशन देन द अपीयरेंस। जहाँ पे इकोनॉमी ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू उसका अपीयरेंस या लुक वाइज, तो हम इसको प्लेस करते हैं कि जहाँ कहाँ प्लेस करेंगे, जहाँ पे नैरो ओपनिंग है, जहाँ पे चौड़ाई कम है डोर की, ठीक है ना, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये एक और इमेज है इसकी, इस तरीके से इसका सेक्शन होगा अगर हम सेक्शन काटेंगे तो, ठीक है। इतना इसको डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देखिए हिंज कनेक्शन कैसा होता है, ये हिंज कनेक्शन है, ठीक है। देखिए उसके अलावा देखिए एक और टाइप होता है बैटन लेजेस एंड ब्रेस डोर। इसमें क्या होगा, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। बैटन तो आपको समझ गया है, जो वर्टिकल पोर्शन पोस्ट है इसको बोलते हैं बैटन। लेजेस हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन एक नई चीज़ आती है इसमें, ब्रेसेस। तो इसमें क्या करते हैं, अगर डोर को और स्ट्रांग बनाना है तो ये इस तरीके से इंक्लाइंड पोर्शन में ब्रेसेस, ये जो पोर्शन है एक और जो मटेरियल का, ये जो हमारा बैटन या लेजेस है अगर वुड का है तो वुड ही मटेरियल का हम क्या करेंगे, इस तरीके से वर्ड इंक्लाइंड ब्रेसेस अटैच करेंगे। ब्रेसेस इज नथिंग बट
वो भी एक तरह का बोल सकते हो आप बोर्ड है या पैनल है, बोर्ड बोल सकते हो हम उसको, वुडन बोर्ड बोल सकते हैं, जो कि 100 to 150 mm वाइड होता है और 20 to 30 mm थिक होता है। बस ये ब्रेसेस हम इसमें अटैच कर देते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मली ये देखिए जेड शेप का होता है, टंग एंड ग्रूव इंटरलॉकिंग बोर्ड अटैच, दे कैन बी क्वाइट हैवी इन वेट बट दिस कैन डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ बोर्ड। अब ये देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से वर्टिकल बोर्ड है, ये ब्रेसेस अटैच कर देते हैं, यानी कि ये दो लेजेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं एक इंक्लाइंड पोर्शन से, जिसको हम बोलते हैं लेजेस। इस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है, देखो ठीक है। तो ये होता है हमारा, इस डोर को हम क्या बोलेंगे, बैटन लेज एंड ब्रेस डोर। देखिए इसमें टाइप में भी था ये, ठीक है ना, बैटन लेज एंड ब्रेस डोर। इसको हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं डोर को, देखिए इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बन गया। ये पूरे आप देख रहे हो ना, पीछे क्या दिख रहा है आपको, पूरा क्या दिख रहा है हमें, बैटन दिख रहा है। फिर ये क्या हो गया हमारा, लेजेस हो गया, फिर ये क्या हो गया, ब्रेस हो गया। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम या पैनल डोर, ठीक है ना। फ्रेम डोर या पैनल डोर, ये क्या होता है, देखिए ये हिंज डोर का ही टाइप है, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ डोर्स आर वाइडली यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग सिंस दे आर स्ट्रॉन्ग एंड गिव अपीयरेंस देन बैटन डोर। बैटन जो हमें अभी अपने डोर देखे उससे अच्छा अपीयरेंस होता है। पैनल डोर्स कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेंबर्स कॉल्ड स्टाइल्स एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर कॉल्ड रेल्स। जो हमने सबसे पहले जो डोर का देखे थे ना, यही है होता है, ठीक है। इसे फ्रेम या पैनल डोर बोलते हैं, एक फ्रेम के अंदर इसको फिक्स किया जाता है। तो ये देखिए ये पैनल है, ये पैनल है, जैसे हमने पूरा पढ़ चुके हैं मूलियन क्या होता है, वर्टिकली पैनल को डिवाइड करता है, हॉरिजॉन्टली रेल डिवाइड करता है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम। ये सिंगल पैनल हो गया, इसमें दो पैनल है और इसमें तीन पैनल है। देखो ये एक ही पैनल है, इसमें दो पैनल हो गए, इसमें तीन पैनल है, एक दो और ये तीन, ठीक है। इसके अलावा देखो 4 पैनल भी है, 5 पैनल डोर है, देखो 5 पैनल, ये 6 पैनल डोर है। तो इस तरीके से पैनल्स, नंबर ऑफ पैनल जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। दिखने में काफ़ी अच्छा होता है अपीयरेंस वाइज, ठीक है ना, अपीयरेंस वाइज ही काफ़ी अच्छा होता है। तो हमने जैसे देखिए पैनल डोर्स कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेंबर को क्या बोलते हैं हम, ये जो वर्टिकल मेंबर है हमने पढ़ चुके हैं, स्टाइल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर को रेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब ग्लेज्ड या सैश डोर। ये सब अभी ही हम हिंज डोर के टाइप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी फिर से दिखा देता हूँ, हिंज डोर के जो टाइप्स है वो काफ़ी सारे हैं। बैटन हमने देख लिए, फ्रेम अभी देखे, ग्लेज, फ्लश, लोवर्ड और वायर देखना बाकी है। सबसे थर्ड देखते हैं हम ग्लेज्ड या सैश डोर क्या होता है, ये और सिंपल है। देखो इमेज दिखा दूंगा पहले, फिर पढ़ने में आसानी होगी। ये ग्लेज्ड या सैश डोर होते हैं। ग्लेज मतलब जिसमें वो आप बोल सकते हो कि जो आप बोल सकते हो ग्लास डोर्स होते हैं ना कांच के, उसे हम बोलते हैं ग्लेज डोर, है ना। इस तरीके से कांच के डोर जो होते हैं, ग्लेजिंग विंडो जिसको या ग्लेजिंग डोर बोलते हैं, ठीक है ना। ग्लास पैनल जो हम अटैच करते हैं तो इसे बोलते हैं ग्लेज डोर। ये फुल्ली ग्लेज्ड है, इसमें पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे ग्लास के मटेरियल है, और ये पार्शली है, इसमें पार्शली देखिए पार्शली कवर किया गया है। पार्शली ये वुड का है पूरा कंप्लीट पैनल, और बाकी जो पार्शल जो पैनल है वो क्या है, बाकी का ग्लेज्ड है। तो इसे हम बोलेंगे ग्लेज डोर, है ना, जो ग्लास लगा होता है तो इसे हम बोलते हैं ग्लेज डोर। दिस टाइप इज यूज्ड इन रेसिडेंशियल पब्लिक बिल्डिंग। They supplement the natural lighting provided by windows or to make the interior of a room visible from adjoining room। जब हमको विजिबिलिटी क्रिएट करना है या फिर नेचुरल लाइटिंग जो है वो इससे आ जाती है अंदर, ठीक है। दे कैन बी मेड फुल्ली ग्लेज्ड और पार्शियली, ये भी हमने देखे। फुल्ली ग्लेज्ड डोर्स आर रिकमेंडेड where sufficient light is required through the door opening like shopping mall entrance halls। जनरली शॉपिंग मॉल्स वगैरह में ये होता है, जहाँ पे आपको अगर फुल लाइटिंग चाहिए बाहर से। इन केस ऑफ पार्शियली ग्लेज्ड द बॉटम 1/3 पार्ट इज यूजुअली पैनल्ड एंड अपर 2/3 पार्ट इज ग्लेज्ड। जैसे अभी हमने देखे नीचे का 1/3 जो है वो पैनल है और ऊपर 2/3 जो है वो ग्लेज्ड है। तो ये ग्लेज डोर होता है, ठीक है। सिंपल है भी बहुत। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये उसी की तरह है, देखिए यहाँ पे ये भी हिंज अरेंजमेंट है इसका। नेक्स्ट इज फ्लश डोर। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे हैं घरों में, ठीक है ना। बहुत सिंपल होता है, फ्लैट सरफेस होता है। देखिए फ्लश डोर्स आर सिंपल डोर्स विद कम्प्लीटली फ्लैट सरफेस ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में इस तरीके से फ्लैट सरफेस होता है, कोई पैनल, कोई इसमें डिवीजन, कोई पैटर्न नहीं होता, सिंपल फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है ना। पूरी तरीके से सॉलिड फॉर्मेट का होता है, ठीक है ना। सॉलिड वुड या
hollow format which gives light weight and comprised of two layers of thin timber separately। ठीक है ना, 2 लेयर का भी हो सकता है। तो ये डोर्स आपने मैक्सिमम बहुत जगह आजकल देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है ना, इसका जो थिकनेस होता है देखिए 25, 30, 35 या 40 mm का होता है। ठीक है, पूरा सॉलिड वुड मटेरियल का होता है। ठीक, सिंपल। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखिए इसमें सॉलिड कोर होता है, हॉलो कोर या सेलुलर कोर होता है। इतना डिटेल में इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लूवर्ड डोर पे आते हैं। ठीक है ना, ये भी हिंज अरेंजमेंट होता है इसका। A lower door has fixed or movable wooden lowers which permit open ventilation while preserving privacy and preventing the passage of light to the interior। सिंपल, इसको पहले डायग्राम में देख लीजिए। इस तरीके से देखो, ये होता है, सॉरी, ये होता है हमारा लोअर डोर। हमने आपने देखे होंगे काफ़ी दफ़ा, वेंटिलेशन एयर वगैरह आने के लिए इस तरीके से जो डोर होता है इसको बोलते हैं हम लोअर डोर। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसकी देखिए यहाँ पे they are most commonly used for bath and WC in residential and public building जहाँ where good ventilation is desired। ठीक है ना, यहाँ पे वेंटिलेशन ज़्यादा चाहिए वहाँ पे यूज़ करते हैं। The door may be lowered to its full height or maybe partially। Similarly इसका भी जो lowered है वो या तो fully होता है या partially। ये partially है ना, ये fully lowered भी होता है इस तरीके से। ठीक है ना, लोअर्स में भी फिक्स्ड और मूवेबल। ये लोअर्स फिक्स हो सकते हैं या उसे मूव भी कर सकते हैं हम। लोअर्स में भी ऑफ टिम्बर, प्लाईवुड और ग्लास, हाउएवर दे आर डिफिकल्ट टू क्लीन। लेकिन इसे साफ करना मुश्किल है। ये होते हैं लोअर, इसमें से एयर या वेंटिलेशन जा सकता है आसानी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम वायर गेज डोर। ठीक है ना, इस तरीके से एक वायर गेज डोर भी होता है। देखिए वायर गेज और फ्लाई प्रूफ डोर शटर्स आर फिक्स टू प्रोवाइड फ्री एयर सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट मॉस्किटोज, फ्लाइज फ्रॉम फ्लाइज एंड इंसेक्ट एक्सेट्रा फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग। इस तरीके से डोर होता है। देखो ये पूरी तरीके से ब्लॉक होता है। इसमें अगर कोई मच्छर, कीड़े मकोड़े वगैरह इसमें से अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, वायर गेज डोर होता है पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से लॉक होता है, कुछ भी जगह नहीं होती है इसमें से कि कोई चीज़ अंदर आ सके। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने हिंज डोर के पूरे टाइप्स कवर कर लिए। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हिंज डोर के हमने पूरे टाइप्स कवर कर लिए। पैटर्न, फ्रेम, ग्लेज, फ्लश, लोवर्ड या वायर गेज पूरे हो गए। ठीक है ना, नेक्स्ट अब देखेंगे हम सिंपल जो टाइप्स और बचे, रिवॉल्विंग, स्लाइडिंग, स्विंगिंग, कोलैप्सिंग और रोलिंग। ठीक है ना, ये देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम रोलिंग डोर। बहुत सिंपल है। देखो रोलिंग डोर, सच टाइप्स ऑफ डोर इज प्रोवाइडेड इन पब्लिक बिल्डिंग लाइक बैंक्स, म्यूजियम, होटल, ऑफिसेस। ठीक है ना, जो डोर रिवॉल्व होता है अपनी लोकेशन पे, वर्टिकल एक्सिस पे रिवॉल्व होता है। अ रिवॉल्विंग डोर नॉर्मली हैज 4 विंग्स, लीव्स, जिसे हम विंग्स या लीव्स बोलते हैं, दैट हैंग ऑन अ सेंटर शाफ्ट एंड रोटेट वन अवे वन वे अबाउट वर्टिकल एक्सिस। एक ही वे में वर्टिकल एक्सिस में ओपन सर्कुलर मोशन में मूव करता है विद इन अ राउंड एनक्लोजर। The central shaft is fitted with a ball bearing arrangement at the bottom which allows the shutter to move without any jerk and making noise। इमेज दिखाता हूँ। देखो यहाँ ये वर्टिकल एक शाफ्ट है, ये देखिए इसमें 4 पैनल्स है और आपस में ये रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं वर्टिकल एक्सिस में। आपने देखे होंगे मैक्सिमम ये। ठीक है ना, मॉल्स वगैरह में तो देखिए जैसे ये होता है रिवॉल्विंग डोर। ठीक है ना, हम इसको अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। आप बस इसका जो फंक्शन है उसे याद रखो। ठीक है ना, एक सेंट्रल शाफ्ट होता है, 4 इसमें इस तरीके से विंग्स होते हैं और आपस, और ये सर्कुलर वर्टिकल मोशन में रोटेट होता है। ठीक है, ये देखिए रिवॉल्विंग डोर का इसका स्पीड कंट्रोल भी है। ठीक है ना, जिस स्पीड से इसको स्विंग करना चाहते हैं उसे स्विंग करवाते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा स्पीड में रोटेट नहीं कर सकते, एक मीडियम स्पीड में रोटेट होता है। ठीक है ना, तो ये होता है रिवॉल्विंग डोर। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइडिंग डोर। देखिए थोड़ा हम स्पीड से देखेंगे इसको क्योंकि ज़्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सिंपल, आप इसका बस फंक्शन समझ लीजिए। इन दिस डोर द शटर स्लाइड हॉरिजॉन्टली अलोंग ट्रैक विद द हेल्प ऑफ रनर्स और रेल्स। द स्लाइड ग्लास डोर्स आर कॉमन इन प्लेसेस वेयर देयर इज नो स्पेस टू स्विंग द डोर। इस तरीके से देखो ये स्लाइडिंग डोर होता है। अब इसमें एक चीज़ याद रखो, जैसे हमने देखे थे हिंज डोर में क्या होता था, वो ओपन होता था पैनल तो जगह कवर करता था। इसमें क्या होगा, स्पेस कवर नहीं करेगा ज़्यादा, है ना। तो ये क्या करेगा, जो स्पेस है वो कम कवर करेगा।
देखिए यहाँ पे सिंपल है, बहुत ही इजी है। ये जो है वो स्पेस को कम कवर करेगा, ठीक है ना। इन दिस डोर द शटर स्लाइड हॉरिजॉन्टली अलोंग द ट्रैक विद द हेल्प ऑफ रनर और रेल्स। इसमें क्या होता है, रनर होता है, रेल्स होता है, और ये इसके देखिए इस तरीके से मूव करता है रेल्स के ऊपर। ये रनर मतलब जो एक हुकिंग अरेंजमेंट है, इसकी वजह से ये इस रेल के ऊपर मूव होता है, ठीक है। अगर स्पेस कम कवर करना है तो सबसे बेस्ट है स्लाइडिंग डोर, ठीक है, स्लाइडिंग डोर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्विंगिंग डोर। इसकी सबसे पहले इमेज दिखाता हूँ। ये भी देखिए इस तरीके से हिंज अरेंजमेंट ही होता है इसमें, लेकिन ये दोनों साइड से स्विंग होता है ना। आपने मैक्सिमम ये देखे होंगे ऑफिसेज में, पुलिस स्टेशन में वगैरह, इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए इसमें द शटर इज फिटेड टू इट्स फ्रेम बाय स्पेशल डबल एक्शन हिंज। द hinge permit the shutter to move both ways, inward as well as outward. The doors are not rebated at the meeting style. To open the door, slight push is made and the spring action bring the door in close position. हमें क्या करना पड़ता है, बस इसे हल्का सा पुश करना पड़ता है और हम उधर से निकल सकते हैं और ऑटोमेटिकली अपनी लोकेशन पे रिटर्न आ जाता है। तो ये होता है, ठीक है ना, ये होता है स्विंग डोर, सिंपल। नेक्स्ट इज कोलैप्सिबल डोर। पहले आपको इमेज दिखाता हूँ, ये भी आपने बहुत जगह देखे। कोलैप्सिबल डोर कितनी जगह देखे, बैंक्स में देखे, हर जगह देखे। जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये डोर होते हैं, इसे आसानी से हम तोड़ नहीं सकते, कोई भी इसे आसानी से तोड़ नहीं सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग डोर होते हैं। सच डोर्स आर यूज्ड इन गैरेजेस, वर्कशॉप, पब्लिक बिल्डिंग एक्सेट्रा टू प्रोवाइड इंक्रीज सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू प्रॉपर्टी, है ना। सेफ्टी या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से डोर्स होते हैं, इसमें आसानी से हम नहीं जा सकते, ठीक है। द डोर्स डू नॉट रिक्वायर्ड हिंज टू क्लोज और ओपन द शटर, नॉट द फ्रेम टू हैंग देम। इट एक्ट्स लाइक अ स्टील कर्टन, एक तरह का स्टील कर्टन है ना, स्टील के पर्दे बोल सकते हैं हम इसे। द डोर इज मेड अप फ्रॉम द वर्टिकल डबल चैनल्स 2010 into 2 mm jointed together with the hollow on the inside to create a vertical gap, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से पोर्शन में इसको बनाया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ के, फिर उसके बाद ऐसा इंक्लाइन पोर्शन में इस तरीके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है कोलैप्सिबल डोर के बारे में, समझ गया। नेक्स्ट देखते हैं अब रोलिंग शटर। इमेज दिखाता हूँ, आपको याद आ जाएगा ये क्या है। शटर सिंपल शॉप्स में जो होता है ना, ऊपर इसको हम क्या करते हैं, रोल हो जाता है पूरा इस तरीके से, पूरा रोलिंग शटर है, मैक्सिमम हमने देखे है शॉप्स में। They are commonly used for shop, godown and stores. The door shutter act like a curtain and provide adequate protection and safety against fire and theft. ठीक है ना, ये भी फायर या चोरी की वजह को रोक सकते हैं ये डोर, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, बहुत जगह हमने देखे इसको। तो ये होता है हमारा रोलिंग शटर, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये रोलिंग शटर भी हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम विंडोज़ देखेंगे, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है काफ़ी आज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विंडोज़। आप डोर के टाइप्स याद रखेंगे, हम पूरे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं विंडोज़। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।